Hello, Namaste, dear friends, doston, how are you? Hope you all are doing well. This is Dr. Suyash Chavan, your friend and guide for UPSC exam preparation. I have secured rank 56 in this year's UPSC examination. This was my first attempt. I thank you all for your positive response to my previous prelims preparation video. I promise I'll make detailed videos on every important aspect of UPSC preparation so that you guys feel that your own elder brother is sitting right next to you and is guiding you in your UPSC journey. Today, I present a very important topic. It's a frequently asked question: how should I score more marks in UPSC exam? These are those tips that I had adapted and which helped me crack this exam in one attempt. I hope you guys find it useful. I'll try to keep this video in both Hindi and English so that people from North India, South India and other parts of India can understand the video properly. I have purposely made it in the form of a presentation instead of a video that merely focuses on my face. It would help those who can understand English to pause it, read it, and I can have the liberty to narrate it in English and Hindi in order to help all our aspirant friends, brothers and sisters. Now, first of all, let me tell you that these are a few basic tips for mains. General studies paper only. These do not apply to the essay. It applies to those who have just started their UPSC preparation or have taken their prelims and are preparing for mains. I will make separate presentation for essay, optional and detailed tips for each GS paper and how to write answers in those GS papers. दोस्तों ये टिप्स एक्चुअल बैटल के लिए है. These tips are for the actual battle in the exam hall. What you can do at the exam center and in the exam hall to score more marks. Study is just 40% of the task. Remember, the major bulk, remaining 60% is how you actually perform in the examination. So once you know what is needed in the actual battle, you can prepare accordingly and make most use of your time. अगर आपको ये पता है कि एग्ज़ाम हॉल में उस बैटल में क्या करना है तो आप अपनी प्रिपरेशन भी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं. सो हियर आई प्रेजेंट दिस वीडियो इन विच आई टेल यू एक्चुअल एग्ज़ाम हॉल में आप क्या इम्प्रोवाइजेशंस कर सकते हो जिससे आपका स्कोर इम्प्रूव हो. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाफ मार्क. So if I tell you about the marks in this year's UPSC examination, my score is 1066 whereas the cutoff is 1006. So the difference is of 60 marks. A candidate who has not secured a rank in the first 1000 ranks or the first ranks is 60 marks short. He needed 60 marks extra out of 2025 total marks in order to get into that list, in order to get to my rank 56 at least. So if you do the maths, there are 7 theory papers that are evaluated and approximately 20 questions per paper. So if you gain half mark extra per question, it would be 10 marks per paper. अगर आप थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाओ तो आपको आधा मार्क एक्स्ट्रा मिल सकता है और ये आधा मार्क आपको हर पेपर में 10 मार्क तक एक्स्ट्रा दिला सकता है. सो इन 7 पेपर्स टुगेदर यू विल स्कोर 70 मार्क्स एक्स्ट्रा. दैट इज़ व्हाट वाज नीडेड दिस ईयर टू गेट टू द टॉप रैंक्स, टू गेट सिलेक्शन इन द टॉप 100. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हाफ मार्क. आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपको हर क्वेश्चन में वो हाफ मार्क चुराना है. Now, the first tip would be the first 5 minutes when you get the question paper. Analyze the question paper. This is very important. Do not start writing immediately. Spend the first 5 minutes in quickly browsing the question paper. Question paper मिलते ही आंसर स्टार्ट नहीं करना है.
पहले आपको क्वेश्चन पेपर को स्टडी करना है फर्स्ट 5 मिनट्स। आपको ऐसा लग सकता है कि ये टाइम पास है, आपके पास पहले ही टाइम कम है, और अगर आप ये सब करने में टाइम वेस्ट करोगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। माय डियर फ्रेंड्स, टाइम वैसे भी कम ही मिलने वाला है, सो यू नीड टू प्लान योर 3 hours very wisely. So what you need to do is analyze the question paper, decide which questions you will attempt first, mark the difficult questions and do not waste time on them. Decide the easier ones and then start writing and gain as many marks as possible in those questions. It is more likely that you won't have enough time. So in the last half an hour or 15 minutes, what you have to do is जो difficult questions आपने मार्क किए हुए हैं उन सब के बारे में जितना भी आपको पता है, जो भी पता है वो लिख देना है. So the end part has to be reserved for these questions which you would have left anyway. But in the initial part, you have to write those questions which you know properly. तो ये कैसे पता चलेगा? ये आपको तभी पता चलेगा अगर आप पहले 5 मिनट अच्छे से उस पेपर को स्टडी करो. Trust me, you won't be wasting time in this exercise. Second thing which you might have heard a number of times is you should solve all the questions. In 2017-18 mains exam, the one which I appeared, there were questions that most of us had no idea about. ऐसे questions थे जिनके बारे में मुझे तो पता नहीं था. For example, how does cryosphere affect global climate? Or the problems of decolonization of Malay Peninsula? Or how does the Juno mission of NASA help to understand the origin and evolution of the Earth? मुझे नहीं पता था. Still, I wrote a few basic points. जितना भी मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था या मेंस के लिए पढ़ा था, जो भी आइडिया था मुझे, वो मैंने लॉजिकली उसमें सब उतार दिया. बिकॉज वो मेरे माइंड में रहेगा तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो उस पेपर पे आना चाहिए. लेट्स से आई स्कोर्ड 1 or 2 marks पर क्वेश्चन. सो अगर आप देखो तो इन क्वेश्चंस के मार्क्स भी अगर जोड़ दो तो इन टोटलिटी द स्कोर improves by say 10 or 15 marks, which makes a huge difference in the end. Now I have heard this dilemma whether to solve around 15 questions out of 20 nicely or to solve all 20 questions hurriedly. Some students say कि अगर मैं 15 questions अच्छे से करता हूँ तो उसमें मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, rather than 20 questions के पीछे भागना एंड उन सब questions में थोड़ा थोड़ा लिखते जाना या ख़राब तरीके से लिखना. I've studied this and I'd like to tell you that it's always better to solve all the questions. Half to 1 mark extra in a few questions that you may have attempted very well at the cost of other questions cannot compensate for the extra marks you will gain by solving those questions जो आप वैसे करने नहीं वाले थे. So it's always better कि आप सारे questions solve करो और हर question में कुछ ना कुछ लिखो. जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं उनको पहले अटेम्प्ट करो, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उनमें भी जितना भी आपको पता है वो आपको लिखना है. Now comes time management. See, there are 20 questions in GS 1, 2, 3 and you have 180 minutes, 3 hours. So what you can do is, if you analyze the question paper, you will see there are 10 questions of 150 words, 10 marks each, and 10 questions, 250 words, 15 marks each. This is as per the new pattern. जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है उनमें आपको 2 पेजेस तक आंसर लिखना है, जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन है उनमें आपको 3 पेजेस तक आंसर लिखना है. The larger questions, the questions in which you have to write 3 pages are towards the end of the question paper. तो अगर आप सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो एंड में आपको ये बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं. आई वुड सजेस्ट यू शुड सॉल्व द 15 मार्क क्वेश्चंस, द बिग क्वेश्चंस इनिशियली, जिसका मतलब है आपको पीछे से सॉल्व करते हुए आना पड़ेगा. दिस इज़ अ रफ टाइम मैनेजमेंट आइडिया. से यू गिव 10 minutes फॉर ईच 15 मार्क क्वेश्चंस. सो फॉर 10 questions you give 100 minutes and 7 minutes each for 10 mark question, so you spend 70 minutes. So in totality you have spent 170 minutes and roughly 10 minutes spare for sign, verification
और बहुत सारा टाइम पास होता रहता है एग्ज़ाम हॉल में, तो उसको भी कंसिडर करना है. सो दिस इज़ अ रफ आइडिया, यू कैन वर्क इट आउट and try it in your practice examinations. You should solve the 10 mark question later, because even if you are short on time, it would be easier to write an answer for 2 pages rather than solving a long 3 page 15 marker at the end in the death hours. So पहले आपको क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना है, उस पर मार्क करना है, और उसमें से भी जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको पहले सॉल्व करके रखना है, सो दैट एंड में अगर टाइम कम भी बचे तो छोटे क्वेश्चंस को आप फटाफट डील कर सकते हो. Now there's this trick, I'll tell you about it. Suppose you are giving 10 minutes to a question, तो उसमें से 2 से 3 मिनट तो वो क्वेश्चन समझने में ही जाते हैं. The questions are rarely straightforward, so you need to understand the question first. 2 minutes on understanding and framing an answer in your mind. So you are left with just about 5 minutes to write it down and fill 2 to 3 pages in good handwriting, in good presentation. So there will always be a race against time. मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट नहीं सॉल्व किए थे. So what I did was, in the examination hall, I used this trick to fool my own brain. Immediately before the first paper, what I did was, I turned my watch ahead by 7 minutes. पहले तो पता होता है कि हम खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं, बट इन द स्ट्रेस ऑफ द एग्ज़ाम आई यूज़ टू फॉरगेट अबाउट दिस. और जैसे ही टाइम ख़त्म होने आता मैं बहुत फास्ट लिखता, और जब टाइम ख़त्म हो जाता मेरी वॉच में, आई यूज़ टू रियलाइज़ दैट अभी भी मेरे पास 7 मिनट्स एक्स्ट्रा है. एंड इन दीज 7 मिनट्स आई यूज़ टू सॉल्व 2 to 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा, जो मैं पहले सॉल्व नहीं कर पा रहा था, या अगर कर भी दिए हो तो उन क्वेश्चंस में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेता. लेट्स से आई स्कोर्ड 2 marks per question and 4 marks per paper by this simple improvisation. So in the end I must have scored over 30 marks in those 7 papers. You can do the maths. So इतनी छोटी सी चीज़, इतना छोटा चेंज भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है. You can apply it to your exam preparation as well. Now GS4 टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चन. GS4 में क्या होता है, 6 केस स्टडीज़ दी जाती है, 250 वर्ड्स, 20 मार्क्स ईच. ये केस स्टडीज़ पेपर के सेकेंड पार्ट में होती है, टूवर्ड्स द एंड. आई वुड सजेस्ट कि आप केस स्टडीज़ पहले सॉल्व करो. दीज आर गिवन एट द लैटर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर. इन केस स्टडीज़ में आपको आपके ओपिनियंस पूछे जाते हैं, सो यू कैन शो योर क्रिएटिविटी and gain more marks. Details of GS4 paper, how to study, how to write the answers, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. This is just an overview. टाइम मैनेजमेंट समझ लीजिए. पर केस स्टडी आपको 15 मिनट्स तक देने हैं, जिससे 6 केस स्टडीज़ आप 90 मिनट्स 1.5 आवर्स में कंप्लीट कर सको. There were 8 questions left in part A. केस स्टडीज़ करने के बाद पार्ट A जो है, पहले का पार्ट, उसमें 8 questions थे. मैंने इससे पहले कभी GS4 का कंप्लीट पेपर सॉल्व नहीं किया था, विच वॉज अ बिग मिस्टेक. आई थॉट 8 questions बाकी है, मेरे पास 1.5 घंटा बाकी है, सो आई विल हैव मोर देन 10 minutes पर क्वेश्चन. बट टू माई शॉक देयर वर मल्टीपल सब बिट्स पर क्वेश्चन. सो इन ऑल 8 क्वेश्चंस को डिवाइड कर करके उन्होंने सब बिट्स डाल के उसको एज गुड एज 16 to 20 क्वेश्चंस बना दिया था. एंड आई गॉट मियरली 3 to 5 minutes टू सॉल्व ईच सब बिट. बहुत कम टाइम था. समहाउ आई मैनेज टू कंप्लीट द क्वेश्चन पेपर एंड इट रिफ्लेक्ट्स इन माई मार्क्स. मेरे मार्क्स एक्सपेक्टेशन से थोड़े से कम डेफिनेटली है. दिस टाइम मैनेजमेंट एरर कैन बी फेटल. जो टाइम मैनेजमेंट हमने GS1, 2, 3 के लिए किया है, वो शायद GS4 को ना अप्लाई करे. सो GS4 का पेपर स्टडी कीजिए, और इफ़ पॉसिबल सॉल्व मल्टीपल GS4 पेपर्स विद दिस पैटर्न. 15 minutes per case study, solve the case studies first and manage your subbits accordingly, so that you will be able to write a good answer in each subbit without causing too much panic during the exam hours. Also remember, scoring in GS4 requires
a different approach. You have to give real life examples. जो ज़िंदगी आपको सिखाती है वो अगर आप उसमें लिखो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लिखने हैं, बहुत आइडियलिस्टिक नहीं. बहुत फंडेबाजी आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं दिलाएगी. प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लिखने हैं. यू कैन यूज़ हेल्प ऑफ माइथोलॉजी, योर ओन आइडल्स, ग्रेट लीडर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़. ये सब आपको हेल्प कर सकता है. इसके डिटेल्स मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा. Now the third tip is you should focus on what is being asked rather than what you know about the question. This is the most common error. Let me explain. एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, पूछी हुई होती है. जनरली वैसा ही होता है. एक टॉपिक पे बहुत सारे सब क्वेश्चन, सब बिट्स पूछे जाते हैं. Each part of that question carries marks. So what you should do is, while reading the questions, mark the keywords asked in the question. आप क्वेश्चन पेपर पे मार्क कर सकते हो. क्वेश्चन पेपर आपके साथ घर आता है, सो देयर इज़ नो पेनल्टी. क्वेश्चन पेपर पे कीवर्ड्स या सब क्वेश्चन, सब बिट्स, पार्ट्स ऑफ दैट क्वेश्चन आपको मार्क करने हैं, सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट आंसरिंग एनी ऑफ दीज पार्ट्स. ऑल्सो understand the difference between terms like analyze, critically analyze, examine, enumerate, elucidate. समझ ना आए तो उसका हिंदी वर्जन पढ़ लीजिए. इट्स बेटर कि आप इन वर्ड्स का थोड़ा सा एक रफ मतलब आपको पता हो. मैं यहाँ वो सब नहीं बताऊँगा क्योंकि इसके वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी है. आप अनअकैडमी का वीडियो देख सकते हो, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है. इट्स वेरी ईजी. बस एक बार आपको एक रफ आइडिया होनी चाहिए. Now while reading the question, one may just focus on a particular keyword or a word that one is familiar with. उसको देख के बस आंसर करने लग जाते हैं. ऐसा नहीं करना है. ये देखना है कि उस वर्ड के बारे में क्या पूछा गया है और उसको आंसर करना है. Answer what is being asked rather than what you know about that question. Only if the question is unknown, कि आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको उस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, ओनली इन दैट केस राइट वॉट एवर यू नो अबाउट दैट क्वेश्चन. जो भी आपके दिमाग में उसके आजू बाजू का भी है वो भी लिख के आओ. आपका क्या जाने वाला है. द एग्जामिनर विल रीड इट. इफ ही लाइक्स इट ही विल गिव यू हाफ मार्क, 1 mark, 2 marks एक्स्ट्रा. दैट वुड बी बोनस, राइट. नाउ लुक एट दिस. हियर आई हैव posted a few pictures of my question papers, the question papers during my attempt. So उसमें आप देख सकते हो कि मैंने कैसे उसको अंडरलाइन किया हुआ है. जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था मैंने उसको अंडरलाइन किया है. जो सेकंड पिक है उसमें एक केस स्टडी है फ्रॉम GS4. उसमें भी मैंने किन चीज़ों पे फोकस करना है, आंसर में कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, उसको अंडरलाइन कर रखा है. This is to tell you that you can underline and you should underline so that you do not miss out on a particular point. फर्स्ट पिक में जो क्वेश्चन 17 है उसको एक बार देख लीजिए. मैं उसको आपको पढ़ के बताता हूँ. What characteristics can be assigned to monsoon climate that succeeds in feeding more than 50% of the world population residing in monsoon Asia? 250 words, 15 marks. ये देखते ही लोगों ने मानसून देखते ही मानसून के बारे में लिखना चालू कर दिया है. जो भी उनको पता है वो सब लिख दिया, डायग्राम्स बना दिए 2-4. दैट इज़ नॉट नीडेड. उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी असाइन टू मानसून क्लाइमेट. सो दे हैव आस्क्ड अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मानसून क्लाइमेट. तो अगर आप जी.सी. लियोंग पढ़ते हो उसमें जो पीछे के क्लाइमेटिक रीजन्स दिए हुए हैं उसमें मानसून क्लाइमेट वाला एक रीजन है, उसमें उन्होंने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन कर रखे हैं. NCERT में भी ये दे रखा है, आपने भी पढ़े होंगे. तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं. एंड कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? वो कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर हेल्पिंग इन फीडिंग मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. ओनली दोज कैरेक्टरिस्टिक्स आर इम्पॉर्टेंट हियर. ऑल्सो रिमेंबर दे हैव टॉक्ड अबाउट मानसून एशिया, नॉट जस्ट इंडिया. सो अगर आप मैप भी बनाओ तो उसमें साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूड कर लो, चाइना के पार्ट्स इंक्लूड कर लो और मॉनसून विंड्स दिखा दो, या फिर
मंथ वाइज जो वेरिएशंस होते हैं मॉनसून में वो दिखा सकते हो आप, उसके डिफरेंट मंथ्स में कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे रिवर्सल होता है, उससे क्रॉपिंग पैटर्न कैसे अफेक्ट होता है वो बता सकते हो. यू कैन ऑल्सो टेल अबाउट दोज शैडो एरियाज विच आर अफेक्टिंग certain parts of India like Bundelkhand, like Marathwada, Vidarbha. You can also talk about the effect of climate change on monsoon, effect of global warming and all. So these are the things you can talk about. तो क्या पूछा गया है वो लिखना है rather than what you know about that question. Now the next tip is regarding the first page. You should understand the examiner's psychology. He has to check a number of papers and उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि आपका पेपर अच्छे से चेक करे. Your aim should be to make him pause and focus on your answers. उसने एक मिनट के लिए रुक के आपका आंसर पढ़ना चाहिए. How do you do that? See, it doesn't matter कि आप आगे कैसे लिखते हो. क्वेश्चन पेपर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, आपके ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा, आप बहुत ख़राब हैंड राइटिंग में यू विल जस्ट ट्राई टू कंप्लीट योर आंसर शीट. बट योर फर्स्ट पेज डज मैटर. इट्स योर फर्स्ट इम्प्रेशन. कोई भी एग्जामिनर आपका फर्स्ट पेज खोल के देखेगा ही. सो फर्स्ट पेज अच्छे से लिखना है. द फर्स्ट 10 minutes आई यूज टू स्पेंड ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ. 10 to 15 minutes. वैसे भी स्टार्टिंग में स्पीड स्लो होती है तो मैं पहला पेज बहुत अच्छे से लिखता था. गुड हैंड राइटिंग, बोल्ड हेडिंग्स, अंडरलाइनिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. सो इट इज़ वेरी लाइकली कि एग्जामिनर फर्स्ट पेज खोलेगा, उसको वो अच्छा लगेगा और उसके मन में मेरे बारे में एक इम्प्रेशन बनेगा कि ये लड़का बहुत डिज़र्व करता है, उसकी हैंड राइटिंग प्रेजेंटेशन अच्छी है. और आगे अगर मेरी हैंड राइटिंग ख़राब होती है, he'll think that इस लड़के को टाइम कम था इसीलिए वो ख़राब हैंड राइटिंग में लिख रहा है. बट he'll realize कि लड़के में अच्छा लिखने का पोटेंशियल है. सो प्लीज़ फर्स्ट पेज अच्छे से लिखना है. Now coming to the main slide. This is the most important slide of this presentation. आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. What this slide tells you is how to score half mark extra per question. तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो. So these are the points. I'll discuss these points in detail in the coming slides. So अगर आप देखो तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप अपने आंसर में डाल सकते हो, उसको अच्छा बना सकते हो. बस आपको ये करना है कि ये चीज़ें आपको याद रखनी है, प्रैक्टिस करनी है एंड एक्चुअल एग्ज़ाम में उसको इम्प्लीमेंट करना है. So these improvisations, I would say, would include headings, diagrams, flowcharts, tables, colored diagrams, use of colors, language, underlining, your handwriting and presentation, the numericals, the data, quotes if possible, schemes and committees, real life examples, multidimensional and an interdisciplinary approach, and arranging your answer into intro, body and conclusion. Let me explain it. The importance of headings. Please make life easy for your examiner. Read the question carefully. Mark the sub-bits asked in the question and let each sub-question become your heading. जैसे किसी क्वेश्चन में एक चीज़ के बारे में 3-4 बातें पूछी गई हो, वो हर बात आपकी एक हेडिंग बन जानी चाहिए और इफ़ पॉसिबल वो हर हेडिंग एक एक पेज के ऊपर आनी चाहिए. से यू हैव 3 pages, मेक 3 headings जिसमें वो 3 चीज़ें पूछी गई हो और उनके बारे में आपको उस पेज पे लिखना है. This heading will let your examiner know that you have addressed all parts of the question. Remember that each part carries marks. Make headings and subheadings, write point wise, paragraph wise,
and to the mark under each heading. See, it's easier to earn extra marks when you have segregated your answer in different parts. जैसे जो चीज़ें पूछी गई है वो आपने एड्रेस की है बोल्ड हेडिंग्स में, तो एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि आपने पूरा क्वेश्चन एड्रेस किया हुआ है, उसके बारे में लिखा हुआ है। हर हेडिंग के नीचे आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो या पैराग्राफ वाइज लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ नॉलेज। आप उसमें डायग्राम्स बना सकते हो, सो इट बिकम्स ईजियर फॉर द एग्जामिनर टू गिव यू मार्क्स। Now the second thing is diagrams, flowcharts and tables. ये क्यों करना है? You have to do it to make your answer paper interesting. एक दिन में वो बहुत सारे पेपर्स करेक्ट करने वाले हैं, तो उनको आपका पेपर अच्छा लगना चाहिए. Now there is always this dilemma. Whether I should draw a diagram using different colors or should I write down more instead? Now you tell me, had you been an examiner, what would you have liked? What would have caught your attention more? Your answer may or may not earn you an extra half to 1 mark, but a logical diagram would definitely earn you extra marks. उसके और भी फ़ायदे हैं. A diagram of half to 1 page would save you the effort of writing down 1 more page. You can draw a quick, crude diagram with your pen, the pen with which you are writing, the blue pen itself. But just do it. You need not use lot many colors. जैसे भी आपको जितना भी टाइम है उसमें एक डायग्राम बनाइए. Practice diagrams right from day one. Paste your rough diagrams in your compiled notes. With time you'll get better at drawing. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आप ड्राइंग बना पाओगे. स्पेशली इंडिया का रफ डायग्राम, इंडिया का डायग्राम बनाना प्लीज़ सीख लीजिए. बहुत इजी है, अपनी कंट्री है, अब बहुत अच्छे से बना सकते हो. इंडिया को एक ब्लॉक की तरह रिप्रेजेंट मत कीजिए. थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो एक अच्छा सा इंडिया बना पाओगे. एंड ट्रस्ट मी, यूपीएससी के आंसर्स में इंडिया आपको बनाना ही पड़ेगा. सो प्लीज़ प्रैक्टिस इट. A week before your exam, go through a few maps, diagrams, जो भी आपने पहले बना रखे हो उनको एक बार देख लीजिए, so that आपको confidence आए और आप वो diagrams exam में बना पाओ. If you can draw good diagrams, if you can use colors, it will definitely attract the attention of your examiner. वो वहाँ रुकेगा, सोचेगा, उसको लगेगा कि यार ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है और उस मार्क को उस डायग्राम को डेफिनेटली एटलीस्ट हाफ मार्क एक्स्ट्रा तो मिलेगा ही. नाउ यू लुक एट द डायग्राम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पेज एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि अगर आप एग्जामिनर होते तो क्या आप मुझे एक्स्ट्रा मार्क देते. सी लुक एट दिस. दे से अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स. तो आप ये देख लीजिए. लेट मी जूम इट फॉर यू. सो सपोज the question asks you about Sagarmala network or something like that. So आपने पोर्ट्स बना दिए जो रेड में है, आपने जो वाटरवेज है वो दिखा दिए ब्लू में, थोड़ा सा उसको लेबल कर दिया. इतना सारा करना पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम में, बट एटलीस्ट आप जितना हो सके उतना कर सकते हो. वाटरवेज दिखा दिए, देन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स दिखा दिए जो ऑरेंज में है, देन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स दिखा दिए. Because everything, this infrastructure ultimately has to help your industrial development. तो वो सब दिखा दिया, कॉरिडोर्स दिखा दिए, इंडस्ट्रियल एरियाज़ दिखा दिए. तो इससे एक बहुत कंप्लीट पिक्चर उस एग्जामिनर के सामने आता है एंड ही विल डेफिनेटली बी टेम्प्टेड टू गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स. सिमिलरली दिस इज़ अबाउट आशियान. सो आशियान या इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप डायग्राम्स बना सकते हो. मैं भी पहले डायग्राम्स अच्छे से नहीं बना पाता था, बट आई यूज़ टू प्रैक्टिस इट और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है. मैंने अपने पेपर्स में बहुत सारे डायग्राम्स बनाए हैं, उससे मेरा टाइम भी बचा है एंड आई थिंक आई हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स इन जीएस बिकॉज ऑफ माई डायग्राम्स. सो प्लीज़ प्रैक्टिस इट. Now the next thing is language and length of answer. See,
दिस कन्फ्यूजेस अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, जो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर से नहीं बिलोंग करते, छोटी सिटीज़ से आते हैं। तो उनको हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि मेरी इंग्लिश पे उतनी कमांड नहीं है। सी, फैंसी वर्ड्स, फ्लावरी लैंग्वेज इज़ नॉट नीडेड। जो आप हिंदू में एडिटोरियल्स में पढ़ते हो वैसा लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो लोग एडिटोरियल लिखते हैं वो लोग आपका पेपर करेक्ट नहीं करने वाले। कीप इट सिंपल, द एग्जामिनर वुड लव इट दैट वे। वो कोई डिक्शनरी खोल के आपके फैंसी वर्ड्स नहीं देखने वाले हैं। सो डोंट इरिटेट हिज ब्रेन। इट्स नॉट एन एग्जाम ऑफ योर इंग्लिश। सो सिंपल इंग्लिश में लिखिए, बट प्लीज़ ग्रामेटिकल एरर्स मिनिमाइज कीजिए। You can add phrases or quotes in Hindi or Sanskrit and explain it in simple language. मैंने बहुत से मराठी, हिंदी, संस्कृत कोट्स भी GS आंसर्स में डाले हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एसेज, आई एम टॉकिंग अबाउट GS में भी लिख दिए। मेरा क्या जाता है, मेरे को वो ध्यान में आता था, मैं लिख देता था, एंड देन आई यूज टू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश। हो सकता है कि किसी एग्जामिनर को वो डिफरेंट लगे और वो वहाँ आधा मार्क ज़्यादा दे दे, राइट? You can take the entire exam in your vernacular, but please, it's my request, English is a global language, वो आपको सीखनी ही पड़ेगी। So आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए, जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको दूर कीजिए। थोड़ा भी इंग्लिश में कॉन्फिडेंस हो तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, एंड यू कैन यूज़ इंग्लिश एज योर मीडियम इन UPSC, बिकॉज ऑब्वियसली बेटर स्टडी मटेरियल इज़ अवेलेबल, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। इंग्लिश में ही बनती हैं बहुत सारी बुक्स, क्लासेस एंड ऑल, सो वो इशू नहीं रहेगा। देयर इज़ ऑल्सो चांस दैट यू विल बी इम्प्रूविंग योर इंग्लिश इन दिस प्रोसेस। एंड इंटरव्यू में भी आई हैव हर्ड कि जो हिंदी या मराठी या कोई भी और लैंग्वेज रखते हैं, the interviewers purposely ask them questions in English in order to test them. I've heard about it, I'm not sure, बट स्टिल आई डोंट विश टू डिसयूड यू। आपको अगर इंग्लिश से प्रॉब्लम है तो आप अपनी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंटली अच्छे आंसर्स लिखिए, आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लोकल लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा स्कोर ला के टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है। बट स्टिल आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ इम्प्रूव योर इंग्लिश। सी, इवन आई डोंट हैव a great command over English, मुझे भी वो प्रॉब्लम आता है, but still I'm trying and I'm requesting you to do that. The second thing is length of your answer. Now, you should not get bothered by the word limit. बहुत से लोग आंसर्स लिखते वक्त वर्ड लिमिट काउंट करके लिख देते हैं, so that's not needed, no need to count the words. Try to cover all the parts of the question and be approximately around the word limit plus or minus 50 words. That's okay. You should focus on writing all the parts of the question and filling all the pages if possible, because psychologically it will make your examiner give you more marks. If your answer is too lengthy, you will fall short of time for other questions. ये होना ही है. If it's too short, तो हो सकता है कि वो कम मार्क्स दे। सी, अगर आप एग्जामिनर हो, 3 पेजेस लिखने हैं, उतना ही डेटा अगर आपने किसी ने 2 पेजेस में लिख दिया, क्रैम्ड अप लिख दिया, तो क्या आप उसे ज़्यादा मार्क्स देंगे? या फिर स्पेशियस तरीके से 3 पेज भर के उतना ही डेटा लिखा हुआ है तो उसको ज़्यादा मार्क्स देंगे? यू नीड टू थिंक। सो आईड सजेस्ट कि आप क्या करो, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स बनाओ, स्पेशियस मैनर में लिखो, सारे पेजेस भर के लिखो, एंड मेक योर एग्जामिनर टर्न द पेज। इफ़ ही टर्न्स द पेज, ही विल गिव एट लीस्ट हाफ और 1 मार्क एक्स्ट्रा। अगर आपने अगले पेज पे 2-4 लाइनें भी लिखी हो तो भी एटलीस्ट उसको चांस रहेगा कि वहाँ कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा डाले। ओके। अंडरलाइनिंग ना, अंडरलाइनिंग करने का टाइम कहाँ मिलता है भाई? मुझे भी पता है टाइम नहीं मिलता। अंडरलाइनिंग may not be feasible given the limited time that we have. Try to underline important phrases as soon as you finish the आंसर। जैसे ही आंसर ख़त्म हो, आपको पता होता है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बस फटाफट उसको अंडरलाइन करो। 5 से 10 सेकंड लगेंगे, बट आई एम श्योर कि अगर एग्जामिनर के पास कम टाइम हो तो वो एटलीस्ट उतने पॉइंट्स देख के आपको मार्क्स दे देगा। हो सकता है आपको आधा मार्क एक्स्ट्रा मिल जाए, एंड आधे मार्क का इम्पोर्टेंस मैंने आपको पहले स्लाइड में ही बताया है।
नो नीड टू अंडरलाइन विद डिफरेंट कलर पेन और पेंसिल, यूज़ द सेम पेन, फटाफट उसको अंडरलाइन कर दो. स्पेशली ऐसे में यू गेट एक्स्ट्रा टाइम टू डू सच आर्ट वर्क, और उसको थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए आपको टाइम मिलता है, तो वहाँ पे आप अलग पेन यूज़ कर सकते हो, अच्छे से अंडरलाइन कर सकते हो. बट जीएस में टाइम कम होता है, फटाफट अंडरलाइन करना है. डू नॉट अंडरलाइन इन दोज क्वेश्चंस वेर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर, अदरवाइज आप एग्जामिनर को अपनी गलतियाँ हाईलाइट करके एक प्लेटर पे दे दोगे. सो वो मत करना प्लीज़. हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ. वंस अगेन, नॉट ऑल ऑफ अस हैव अ वेरी गुड हैंड राइटिंग, बट वी कैन स्टिल मेक आवर पेपर प्रेजेंटेबल. वही करना है. वर्क ऑन द spacing between your words, your sentences and the paragraphs. Leave adequate space so that your answer doesn't seem cramped up. बहुत घिचमिच और बहुत पैक करके आंसर्स लिखा हुआ है तो आई डोंट थिंक उसमें मज़ा आएगा. फर्स्ट पेज हमेशा अच्छे से लिखना है. वंस अगेन आई विल टेल यू कि ये आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है, तो उसको अच्छे से लिखो. उसके बाद लास्ट आवर में हैंड राइटिंग के बारे में मत सोचो, आपको बस आपका पेपर कंप्लीट करना है. द एग्जामिनर विल नो कि आपके पास टाइम कम था, इसलिए आपने उतना फास्ट लिखा है. फिनिश द पेपर बाय ऑल मीन्स. ट्राई टू फिल ऑल द पेजेस इवन इफ यू कुड राइट ओनली अ फ्यू लाइन्स पर पेज. An examiner is more likely to give extra marks if you make him turn the page for the answer rather than writing more points on the same page. I'm sorry but ये सारे माइंड गेम्स आपको खेलने पड़ेंगे अगर आपको एक्स्ट्रा स्कोर करना है और कंपटीशन को बीट करना है. न्यूमेरिकल्स तो मुझे कभी याद ही नहीं होते, ये कॉमन कंप्लेन है. But what happens is, if you give good data, good numericals, it will substantiate your point of view. So try to collect and quote data from reliable sources. कौन से sources? Sources like the economic survey, the budget. Mains के थोड़ा सा पहले उसको एक बार रिवाइज कर लो, वो points स्पेसिफिकली याद रख लो, तो आप उसको कोट कर सकते हो. ऐसा लिख सकते हो कि as per the recent economic survey, so and so data numerical has been given. That will make your answer more relevant. Your numericals may not be accurate. You can use terms like approximately. For example, the out-of-pocket expenditure of healthcare in India is approximately 70%. There's no need to quote exact figures. It will make the examiner think that you are well read. उसको लगेगा कि यार कितना पता है इस लड़के को. And I hope that you are well read और आपको ये सब याद रहेगा. अंडरलाइन योर न्यूमेरिकल्स, उसका फोकस वहाँ जाना चाहिए सो दैट ही रीड्स इट. नाउ दैट यू नो दैट यू हैव टू पुट इन न्यूमेरिकल्स, तो आपकी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग होती जाएगी. सो कलेक्ट न्यूमेरिकल्स ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फेज एंड अरेंज इट एज पर ईच सब हेडिंग ऑफ योर जीएस सिलेबस. जीएस के 3 पेपर्स अगर आप देखो 1 2 3, उसका सिलेबस देखो, तो उसकी हर सब हेडिंग में आप कुछ न्यूमेरिकल्स डाल के रख सकते हो, सो दैट अगर उस सब हेडिंग पे क्वेश्चन आए तो वो न्यूमेरिकल्स आप वहाँ लिख के आ जाओ. दैट विल मेक योर स्टडी मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड ईजी टू रिमेंबर. इफ़ यू कलेक्ट न्यूमेरिकल्स राइट फ्रॉम डे 1, ऑर्गेनाइज इट वेल थ्रू आउट द ईयर और आफ्टर योर प्रीलिम्स, बिटवीन योर प्रीलिम्स एंड मेन्स, you are more likely to revise it, write it and score a few extra marks than your competitors. So numericals लिखने हैं या नहीं लिखने हैं, उसको प्रैक्टिस करना है. So start collecting them. Let me show you how I collected these numericals and data. So I used Evernote. Evernote पे as you can see in the first picture, फैक्ट्स एंड फिगर्स करके मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था जिसमें मैं जीएस वाइज उसको न्यूमेरिकल्स को ऐड करता जाता था. जो भी मुझे न्यूज़पेपर में मिलते थे, स्टैटिक पोर्शन में मिलते थे, करंट अफेयर्स में मिलते थे, वो सब मैं यहाँ ऐड करता था. इट यूज़ टू टेक हार्डली 10 seconds टू ऐड अ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल और डेटा, बट अल्टीमेटली इन द एंड इट डिड हेल्प मी अ लॉट. सो यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर, ये बहुत ज़्यादा है, उसको स्क्रॉल करके एक बहुत बड़ा पेज है. I'll post all my data, all my information for you guys separately. I'll give you the links, don't worry. But अभी आप जब पढ़ रहे हो तो आप ये स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हो.
सो हियर दिस एट इंडिपेंडेंस वाले सेक्शन में मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करता जाता था. यू शुड हैव सम बेसिक न्यूमेरिकल्स जो आप हर जगह डाल सको. तो किसी भी इंट्रो में, चाहे एजुकेशन पे आए चाहे हेल्थ पे आए क्वेश्चन, तो उसके इंट्रो में आई यूज़ टू स्टार्ट इट फ्रॉम इंडिपेंडेंस कि तब ये हालत थी, आज इतना इम्प्रूव हो गया है, बट ये प्रॉब्लम्स बाकी हैं एंड ये सॉल्यूशंस हैं. सो दैट गिव्स अ गुड पिक्चर टू द आंसर. देन देर आर स्पेसिफिक टॉपिक्स रिलेटेड टू जीएस लाइक एजुकेशन है, हेल्थ है, उसके अकॉर्डिंग जो भी न्यूमेरिकल्स हैं मैं उसमें ऐड करता जाता था. अल्टीमेटली इट हेल्प मी इन रिवाइजिंग इट वेरी क्विकली. इट ऑल्सो हेल्प्स यू ड्यूरिंग योर इंटरव्यू प्रिपरेशन सो दैट आप बस ब्लफ ना करो, आपके पास स्पेसिफिक न्यूमेरिकल, स्पेसिफिक डेटा विथ रेफरेंस हो. द नेक्स्ट थिंग इज कोट्स. दे से कोट्स ऐसे में यूज़ करने हैं, बट जीएस के आंसर्स में कोट्स यूज़ नहीं करने, ये किसने बताया? ऐसा कुछ रूल है क्या? नहीं है ना. तो प्लीज़ यूज़ करो. अगर आप एग्जामिनर होते तो क्या आपको पसंद आता कि कोई अच्छी सी कोट लिखी हुई हो? सपोज़ एजुकेशन पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है एंड आप नेल्सन मंडेला का एक अच्छा सा कोट उसमें डाल दो उसके कंक्लूजन में, तो आई गेस एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स देगा. और आई थिंक मैंने वो किया है, मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं. सो आई थिंक दैट वर्क्स. मेक श्योर यू डोंट फोर्स इट इन योर आंसर. मेक इट फील लॉजिकल, अ लॉजिकल पार्ट ऑफ योर आंसर. जैसे आप कंक्लूजन देते जाते हो तो उस टाइम पे अगर आप कोट डालो तो वो बहुत अच्छा लगेगा. I had made a collection of quotes which would be useful for each GS paper based upon its syllabus. जैसे मैंने न्यूमेरिकल्स के साथ किया था वैसे कोट्स के साथ भी किया था. सारे कोट्स को GS सिलेबस वाइज डिवाइड कर लिया था. सिलेबस के हर सब पार्ट पे मेरे पास एक कोट रेडी होता था. सो उस पार्ट पे अगर कोई क्वेश्चन आए तो आई यूज टू राइट दैट कोट वेर एवर इट इज़ एप्लीकेबल. एग्ज़ाम के दिन कैब में जब मैं अपने सेंटर जा रहा था, मुझे ट्रैवलिंग में 2-2.5 घंटे लगते थे वन साइड. सो उस टाइम पे मेरे पास जो टाइम होता था उसमें मैंने अपने न्यूमेरिकल्स और कोट्स को रिवाइज़ किया था and I used them in my answers. Now look at this. This is an example, a glimpse of my quotes preparation. So first picture में GS1 के quotes हैं, वो आगे नीचे scroll अगर मैं करता तो बहुत बड़ा पेज था वो. I'll post it for you guys. I'll give you the links. सो GS1 में फॉर एग्जांपल ट्रू पीस या जस्टिस, J&K, नैक्सलाइट, राइट से रिलेटेड अगर कुछ आए तो ये कोट्स मैं डाल सकता था. ट्रू पीस इज़ नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ टेंशन, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस. सो जैसे ही आप सॉल्यूशन दो वहाँ पे ये भी लिखो कि ट्रू पीस के लिए जस्टिस होना चाहिए, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, एंड एज राइटली सेड बाय मार्टिन लूथर किंग, सो एंड सो कोट डाल दिया. तो आई गेस आधा मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा. ना भी मिलेगा तो आपका क्या जा रहा है, but please practice it this way. Similarly GS2 के जो सब पार्ट्स है like freedom and development, investment, freedom of press, freedom of speech, you can apply it any way in any paper. but उसको अगर आप segregate करके रखोगे तो अगर उस टाइप का क्वेश्चन आता है, फ्रीडम पे आता है, तो you can quickly recollect कि आपके पास एक कोट रेडी है तो आप वो वहाँ लिख सकते हो. so please be organized. से फॉर एग्जाम्पल विमेन पे आता है कोई क्वेश्चन तो उसके कोट्स रेडी थे. चिल्ड्रन पे आता है तो उसके कोट्स रेडी थे. चाइल्ड लेबर पे आ गया या कुछ भी मोलेस्टेशन पे आ गया, ट्रैफिकिंग पे आ गया तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ लिख दी, कुछ कोट्स लिख दिए, तो इट मेक्स योर आंसर डिफरेंट. यू विल अर्न ब्राउनी पॉइंट्स. So this is how I arranged my quotes, GS1, 2, 3, GS4, and I used them in essays as well. The next is schemes. स्कीम्स, कमिटीज़, ऐसी चीज़ें जो है वो अगेन आपके क्वेश्चन को बहुत रेलेवेंट, आंसर को बहुत रेलेवेंट बनाती है, सब्सटैंशिएट करती है. इट इज़ ऑलवेज गुड टू मेंशन द इम्पॉर्टेंट स्कीम्स इन योर आंसर. एवरी आंसर हैज़ अ प्रॉब्लम पार्ट एंड अ सॉल्यूशन पार्ट, जिसमें आप प्रॉब्लम्स बताते हो, एन्यूमरेट करते हो, एक्सप्लेन करते हो, एंड देन यू ट्राई टू गिव एन ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशन. सो लेट स्कीम्स बी अ पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन. It is always good to read and revise the schemes, their objectives, their targets, and their achievements in short, and their shortcomings as well.
So what you can do is you can yourself make a table of the important schemes ministry wise, या फिर ये टाइम पास नहीं करना है तो रेडीमेड नोट्स अवेलेबल है, थोड़ा सा गूगल सर्च कीजिए या मार्केट में जाके कुछ नोट्स उठा लाइए, से फॉर एग्जांपल विजन IAS, GS स्कोर या और बहुत सारी क्लासेस है. आई कांट रिकलेक्ट इट राइट नाउ, बट अगर मुझे मिलता है तो आई विल पोस्ट इट ऑन अ सेपरेट ब्लॉग. बट आप सर्च कीजिए, आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे जिसमें स्कीम्स हैव बीन अरेंज्ड टॉपिक वाइज और मिनिस्ट्री वाइज और डिपार्टमेंट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, दैट वे, सो दैट किसी एक टॉपिक पे अगर क्वेश्चन आता है, से फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, तो आपके पास वो सारे स्कीम्स के नाम पता हो. If time doesn't permit or you have very limited knowledge, what you can do is you can just mention the names of the schemes as a separate point so that the examiner knows कि आपको schemes के नाम तो पता है एटलीस्ट. अब टाइम कम है तो आप क्या करोगे, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप उस स्कीम के बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख सकते हो, आधा पेज उस स्कीम के बारे में, उन स्कीम्स के बारे में लिख सकते हो, सो दैट इट गिव्स यू मोर मार्क्स. अब स्कीम्स का मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था, सो व्हाट आई डिड वाज, जैसे मैंने न्यूमेरिकल्स, डेटा और कोट्स के बारे में किया था, वैसे ही इन स्कीम्स को भी मैंने GS पेपर वाइज, सिलेबस वाइज डिवाइड कर लिया था. एंड आई यूज टू रीड इट दैट वे. लेट मी शो यू. See this. In this first picture, you can see these are the government schemes and initiatives compilation for GS2. तो उसमें एजुकेशन, हेल्थ, उसके रिगार्डिंग स्कीम्स मैंने ऐड कर रखी थी. जो भी डेटा, जो भी स्कीम्स, जो भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, देयर इनिशिएटिव्स, जो भी हो मैं वहाँ ऐड करता था और वो GS2 के लिए मेरा एक मटेरियल बन जाता था. सो GS2 के पहले, पेपर के पहले, आई यूज टू रीड GS2 के रिलेवेंट न्यूमेरिकल्स, उनके कोट्स एंड उनकी गवर्नमेंट स्कीम्स. यू कैन इमेजिन मेरा प्रिपरेशन कितना अच्छा रहता होगा. मैं चाहता हूँ कि आप भी उसी तरीके से प्रिपरेशन करो. सी दिस गवर्नमेंट स्कीम्स रिगार्डिंग एजुकेशन, एजुकेशन में भी फिर एक्सेस, क्वालिटी, इक्विटी, ऐसे मैंने उसको डिवाइड कर रखा था, उसके अकॉर्डिंग स्कीम्स थी. इवन हियर इन एक्सेस you can see I have made mnemonics in order to remember them. For example, ESPN बना रखा है, एजुकेशन से रिलेटेड स्वयं, PM दिशा, NSP, that way. तो उसको याद करने के भी तरीके डेवलप करता रहता था सो दैट मुझे एंड में रिवाइज करते वक्त स्ट्रेस ना आए. Here in the second pic you can see HEFA, Higher Education Finance Agency, और लिंकिंग एजुकेशन विद द अदर सेक्टर्स जो अपनी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से कर रही है. फॉर एग्जांपल दिस हायर एजुकेशन IIT हैज़ बीन लिंक्ड विद इंडस्ट्री, विलेज एंड स्कूल थ्रू 3 different schemes that has been shown here. Then इक्विटी इन एजुकेशन, हाउ दे आर ब्रिंगिंग इन इक्विटी, तो वो याद करने के लिए मैंने इंडिया का मैप बना रखा था और उस मैप पे आई ट्राइड टू रिमेंबर ऑल दीज स्कीम्स दैट वे. सुपर 40 हो गया, नॉर्थ ईस्ट के लिए ईशान, या विलेजेस कनेक्ट करने के लिए उन्नत हो गया, फीमेल्स के लिए श्रीहरि कमेटी या नई मंजिल, वॉट एवर. सो दैट वे यू कैन कंपाइल इट एंड रिमेंबर इट. Yet another example, these are the schemes related to health. See, I had made a kind of a timeline और जिसमें मैंने सारी schemes mention कर रखी थी so that it becomes easier to remember. और यही मैं अगर आंसर पेपर पे भी बना के आ जाऊँ तो what harm does it do to me? वो अच्छा ही लगेगा, एग्जामिनर को कुछ अलग मिलेगा, कुछ डिफरेंट मिलेगा. These are the schemes related to रेल सेफ्टी, तो वो कैसे याद रखें, तो उसका एक रफ डायग्राम बना के याद रखा है, सारी स्कीम्स उसमें डाल दी हैं. आगे भी जो स्कीम्स कमिटीज़ बनती थी वो मैं उसमें ऐड करता जाता था. कुछ इंसिडेंट्स होता था करंट अफेयर्स में, वो वहाँ ऐड करता था. फॉर एग्जांपल दिस अनफॉर्चुनेट इवेंट वेयर दिस पुरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस हैड डीरेल्ड and 23 people had died. So this incident happened a few days before my exam, so I had added it over there so that I could write it in my answers as well. So this is how you have to arrange
your numericals, your quotes, your data, your schemes in different folders, syllabus wise, paper wise, GS 1 2 3 उसका सिलेबस देखो, सिलेबस के सब पार्ट्स देखो, उसमें ऐड करते रहो. इतना ब्यूटीफुल कंपाइलेशन होगा आपके पास कि बिफोर योर एग्जामिनेशन, इवन इफ़ यू जस्ट गो थ्रू दीज स्कीम्स, आपके दिमाग में बहुत डेटा होगा. कोई भी क्वेश्चन आए आप उसके इन एंड अराउंड लिख सकते हो. देन इन दैट एग्जाम हॉल, इन दोज 3 hours आप और क्या कर सकते हो. आपके आगे अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो आपको उसको हेडिंग्स, सब हेडिंग्स बना के डील करना है, स्पेसिफिक्स लिखने हैं, राइट. बट व्हाट इफ इट्स अ जनरल क्वेश्चन, say for example a question on health sector, on agriculture, on women's issue, so आप उसको कैसे डील करोगे. So you have to develop a multi-dimensional holistic approach. Now ये बहुत बार आपने सुना होगा holistic answer, balanced viewpoint and all, but वो होता क्या है, let me tell you. मैं उसको कैसे डील करता था. मैंने क्या किया था, 5 approaches डेवलप किए थे या अडेप्ट किए थे या दूसरों से सीखे थे. लेट मी टेल यू, आई होप यू कैन सी दिस स्क्रीनशॉट. तो द 5 अप्रोचेस वर, फर्स्ट इज़ GS अप्रोच, जिसमें अगर कोई क्वेश्चन आता है, से फॉर एग्जांपल वुमेन्स इश्यूज़ पे आता है, तो GS के जो पार्ट्स और हेडिंग्स हैं, जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करो उस टॉपिक को एंड फिर सोचो. वुमेन्स का क्वेश्चन है, सो GS 1 में हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से विमेन के साथ क्या होता आ रहा है वैदिक टाइम में, या जो रिनाइजेंस हुआ था तब, सावित्रीबाई फुले, या उस टाइम पे क्या क्या किया गया था. दिस इज हिस्टोरिकल. जोग्राफिकल एस्पेक्ट में से फॉर एग्जांपल देयर द काइंड ऑफ प्रिविलेजेस और द काइंड ऑफ facilities you may say the women get in different parts of India are different, so that way you can divide it geographically, then culturally, then GS2, GS3, GS4. in point of view से अगर आप women के बारे में सोचोगे तो you will get a lot of points. आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपके दिमाग में ऑलरेडी बहुत पॉइंट्स हैं, बस आपको सोचने का तरीका बदलना है. So the first approach is this GS approach. Think on a particular topic from the point of view of all 4 papers of GS and their subparts, so you can extract more points on that particular topic. उसी टॉपिक पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलने लगेंगे. The second approach is the IRS approach. IRS means वो एक एक्रोनिम है, एक मेमोनिक है, जिसमें मैं क्या करता था. IRS means I stands for investment, infrastructure and information. R stands for resources, material resource, human resource and research. S stands for science tech, schemes and specific issues. Let me explain. Say for example education पे क्वेश्चन आता है और एक जनरल क्वेश्चन है, आपको उसको डील करना है. आप उसको GS अप्रोच लगा सकते हो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जोग्राफिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एथिकल एंड ऑल. दैट इज़ वन अप्रोच. सेकेंड इज़ द IRS अप्रोच. IRS अप्रोच में क्या करना है, I मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इन एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस इन एजुकेशन, ये एक्सप्लेन कर दो पैराग्राफ वाइज. फिर ह्यूमन रिसोर्स की क्या हालत है, टीचर्स कैसे हैं, स्टूडेंट्स कैसे हैं, वो बताना है. मटीरियल रिसोर्स मतलब बुक्स, क्लासरूम्स, टॉयलेट फैसिलिटीज़, प्लेग्राउंड्स, ये सब कैसा है. रिसर्च इन एजुकेशन कैसा है. देन साइंस टेक्नोलॉजी, इट्स यूज इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, द स्पेसिफिक इश्यूज एंड द स्कीम्स इन दैट टॉपिक. सो इस तरीके से आप अगर सोचो तो उस टॉपिक पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं. सो दिस इज़ अनदर अप्रोच. द थर्ड अप्रोच इज़ द स्टेक होल्डर अप्रोच. स्टेक होल्डर अप्रोच मतलब आपको सारे पॉइंट ऑफ व्यू, सारे स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन एग्रीकल्चर पे आता है तो आपको सोचना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फार्मर, फ्रॉम हिज फैमिली, फ्रॉम हिज चिल्ड्रन, from the point of view of the society, the consumer, from the point of view of the trader, the middleman, from the point of view of your state, your food corporation, then your central agencies, the union ministry, the international community, that way.
सो सारे स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे तो आपके पास हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ लाइंस दिमाग में आएंगी, यू कैन राइट इट डाउन एंड आपका आंसर एक कंप्लीट आंसर लगने लगेगा। द फोर्थ अप्रोच इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म अप्रोच। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म अप्रोच इन्वॉल्व्स, कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको डिवाइड करना है कि शॉर्ट टर्म में हम उसमें क्या करने वाले हैं और लॉन्ग टर्म में क्या करने वाले हैं। जब सॉल्यूशन देते हो तो स्पेसिफिकली ये अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज सॉल्यूशन का नेचर ऐसा ही होता है। कुछ सॉल्यूशन आपको शॉर्ट टर्म में देने हैं। फॉर एग्जांपल फार्म लोन वेवर कुड बी अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, बट अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन वुड इन्वॉल्व मोर basic approach, development of the infrastructure, or giving some doing some structural changes so that such crisis does not appear in the future. So this is how you can develop your answer and write it down in terms of a short term and a long term solution. So this is another approach. And the final one is the positive and negative approach or the pros and cons approach. कोई भी क्वेश्चन आता है उसको डिवाइड करो, उसके प्रोज पहले बताओ, कॉन्स बताओ, इन दी एंड कंक्लूजन एक पॉजिटिव दो जिसमें बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। सो बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि मैं आंसर्स कैसे लिखूं, तो उसके लिए आप ये अप्रोचेस यूज़ कर सकते हो। मैंने खुद ये अप्रोचेस डेवलप करके उनको अप्लाई किया था एग्ज़ाम में एंड आई थिंक आई हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। सो आप ये ट्राई कर सकते हो, इट विल हेल्प यू। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इसमें आपको आपके आंसर को स्ट्रक्चर करना है बिकॉज दैट विल फेच यू मोर मार्क्स। बहुत बार ऐसे होता है कि आप अपने आंसर को ऐसे स्ट्रक्चर नहीं कर पाते हो, इट्स ओके, जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ आप उसको स्ट्रक्चर वे में लिख सकते हो। ओके, डोंट गेट स्ट्रेस्ड अबाउट दिस फैक्ट कि मैं इंट्रो नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं कंक्लूजन नहीं लिख पा रहा हूँ, दैट्स ओके। मतलब जो बैटल है, जो एग्ज़ाम है, उसके अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग डील करना है। एक ही अप्रोच लेके आप नहीं चल सकते हो। पिछली स्लाइड में भी हमने 4-5 अप्रोचेस रखे थे, उसमें से जो जहाँ अप्लाई होता है वो वहाँ अप्लाई कीजिए। आप इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन लिख पा रहे हो तो वेल एंड गुड। इंट्रोडक्शन में 2 to 3 लाइन्स लिखनी है, बहुत बड़ा इंट्रो नहीं लिखना है क्योंकि इंट्रो को ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। यू मे जस्ट डिफाइन अ पर्टिकुलर टर्म दैट हैज़ बीन आस्क्ड। क्रायोस्फीयर पूछा गया था तो उसमें आप क्रायोस्फीयर डिफाइन कर सकते हो, बस सिंपल लैंग्वेज में। रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रोट लर्निंग करके सेम टू सेम डेफिनेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रो में यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट द हिस्ट्री, यू कैन कनेक्ट इट टू करंट अफेयर्स। जैसे रेलवे पे क्वेश्चन आया होता तो मैं उसको वो उत्कल एक्सप्रेस में जो इंसिडेंस हुआ था वो डाल के कनेक्ट कर सकता था। So that way you can do it in the introduction. In the body, you have to divide it in headings and subheadings depending upon the sub questions. I'm reiterating it, ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ। अब एक क्वेश्चन होता है कि पॉइंट वाइज लिखूँ या पैराग्राफ वाइज। सो इफ़ यू नो द आंसर वेल, राइट पॉइंट वाइज। अगर अच्छे से नहीं पता है तो एक पैराग्राफ लिख दो, इट्स ओके, उसके एवरेज मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इफ़ इट्स अ जनरलाइज्ड क्वेश्चन, अप्लाई आर 5 अप्रोचेस। जो हमने अभी डिस्कस किए हैं वो अपनी टेक्निक आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ट्राई टू राइट अ बैलेंस्ड मल्टी डायमेंशनल आंसर। अगर आप वो 5 अप्रोचेस लगाओगे, उसमें से एक भी लगाओगे तो एक बहुत बैलेंस्ड आंसर सामने आएगा। ऐड न्यूमेरिकल्स, स्कीम्स, डायग्राम्स, टेबल्स, इंफॉर्मेशन फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ये सब डालना है आपको। जितना दिमाग में है वो सब डालना है और आधा 1 मार्क चुरा लेना है उनसे। Underline as soon as you finish writing the answer. So this is how you can differentiate your answers from the rest of the aspirants. Conclusion, always give an optimistic conclusion. और यहाँ पे आप एक बहुत अच्छा सा कोट डाल सकते हो। Just imagine, अगर आप ये सब अप्लाई करते हो तो आपका आंसर कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा लगेगा पढ़ने वाले को। Now in the end, let me show you a few pages of my answer sheet. Believe me, मैंने सिर्फ एक टेस्ट पेपर लिखा था अपनी पूरी जर्नी में। वो था विजन का एक पेपर एंड बस वो एक पेपर मैंने दिया है अब तक।
मैंने क्वेश्चंस थोड़े बहुत सॉल्व किए होंगे, मेरे पास टाइम बहुत कम था, मुझे एक ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक करनी थी, वो मैंने खुद को प्रॉमिस किया हुआ था, मेरे पास टाइम कम था वो डायलेमा हमेशा रहता था कि whether I should go and solve mock papers and spend 4-5 hours in that, या फिर वो 4-5 घंटे में बैठ के पढ़ाई करूँ, रिवाइज़ करूँ। बट आई वुड सजेस्ट कि पेपर सॉल्व करने से आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है, तो आपको पेपर सॉल्व करने चाहिए। जैसे मैंने बताया, GS4 का मैंने कभी पेपर नहीं सॉल्व किया था, ऐसे मैंने फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम में लिखा है। सो ये बहुत बड़ी गलतियाँ हैं। फॉर्चुनेटली आई गॉट थ्रू, बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू गाइज। लेट मी शो यू दैट पेपर जो मैंने सॉल्व किया था। उसमें आई गेस मैंने 14-15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे आई गेस रफली, और मुझे कुछ 83.5 मार्क्स मिले थे। ओके, बट आईड लाइक टू थैंक दिस पर्टिकुलर क्लास और जिसने भी ये पेपर करेक्ट किया था, क्योंकि उन्होंने जो मुझे रिव्यूज़ दिए थे उसमें उन्होंने मुझे इनकरेज भी किया, और उस एक ही पेपर में उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि मैं क्या क्या कर सकता था। सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। सी, आई एम नॉट बीइंग पेड बाय दिस क्लास, लेट मी क्लैरिफाई दिस। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू देम कि उनकी वजह से मुझे ये सक्सेस मिलने में मदद हुई है। नाउ द नेक्स्ट इज दिस पर्टिकुलर आंसर। इस आंसर में उन्होंने पूछा था प्रकाश सिंह केस के बारे में। एन्यूमरेट द गाइडलाइंस फॉर पुलिस रिफॉर्म्स एज लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन प्रकाश सिंह केस इन 2006 एंड क्रिटिकली डिस्कस द इश्यूज इन देयर इम्प्लीमेंटेशन। मुझे प्रकाश सिंह केस के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। दिस वॉज अ फ्यू वीक्स बिफोर माई मेन्स। जस्ट इमेजिन माई लेवल ऑफ प्रिपरेशन। बट स्टिल इट इज़ नॉट हाउ डीप और आपको कितना ज़्यादा पता है उसकी एग्ज़ाम नहीं है, आपका अप्रोच सही होना चाहिए। मैंने बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी थी, कुछ चीज़ें मुझे नहीं आती थी, अगर उसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो डरना नहीं है। बी ब्रेव, अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। सो मैं जितना मुझे आता था वो सब मैं इसमें डाल के आ गया, बहुत जनरल आंसर लिख के आ गया, छोड़ा नहीं मैंने। उसका मुझे 1 मार्क दिया गया था, बट स्टिल दैट 1 मार्क वॉज बोनस, अदरवाइज आई वुड हैव लेफ्ट इट ब्लैंक। एंड सी दिस, सदरक्षण आय, खल निग्रहण आय, पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ गया, शायद किसी मूवी में सुना होगा या वॉट एवर, बट अगर वो आपके दिमाग में है और अगर वो काम का है, रेलेवेंट है, तो बस डाल दो। यू नेवर नो क्या एग्जामिनर को इम्प्रेस कर जाए। नो दिस इज़ अनदर आंसर जिसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, मैंने पढ़ा था इसको, तो उसको मैंने कैसे डील किया है। Though both India and Bangladesh have been able to resolve various pending bilateral issues, solution to the Teesta water dispute remains elusive. Discuss. The question was about Teesta issue, India and Bangladesh. So बहुत ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने आधा पेज का डायग्राम ही बना दिया, उसके डेफिनेटली उसका आधा एक मार्क्स मिला ही होगा। एंड देन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर जो भी पार्ट पूछा गया था, जितना मुझे आता था वो मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया। नंबर्स डालने की ज़रूरत नहीं है, आप बस पॉइंट्स बना के उसको लिख सकते हो। जो इम्पोर्टेंट लगता था उसको फटाफट अंडरलाइन कर लिया। यू कैन सी डायग्राम मैंने कलर में नहीं बनाया है, टाइम कम था, जैसे आता था वैसे ही बना दिया। इंडिया का डायग्राम प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, आपको बनाना पड़ सकता है, पड़ेगा ही, और इंडिया अगर खूबसूरत बनाओ तो किसी को भी अच्छा ही लगेगा, किसी भी इंडियन को। देन जो भी मुझे आता था उसके हेडिंग्स बना के मैंने लिखा है इसमें। आई हैव ट्राइड टू प्रेजेंट इट वेल एंड थोड़ा ठीक ठाक हैंड राइटिंग निकाल के, एंड इन दी एंड एक थोड़ा सा पॉजिटिव काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन कंक्लूजन लिखा है। लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट एन आइडियल आंसर। ये आंसर, ऐसा आंसर तब लिखना है जब आपको थोड़ा बहुत पता हो। मैं आगे सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा ऑन आंसर राइटिंग, जिसमें मैं आपको आई ट्राई टू शो यू कि आइडियल आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, और उसमें जो भी हमने रेसिपी देखी है, ये इंग्रेडिएंट्स देखे हैं, ये जो 7-8 चीज़ें जो आपको आधा आधा मार्क्स एक्स्ट्रा दिलाएंगी, वो सब डाल के आई ट्राई टू मेक अ वीडियो और आपको दिखाऊंगा कि कैसे आंसर लिखना चाहिए। माइंड गेम्स। सी,
आप एग्जामिनर को कन्विंस करना चाह रहे हो उसके दिमाग में घुस के, और एग्जामिनर आपका दिमाग पढ़ना चाह रहा है आपका आंसर शीट देख के. सो दिस इज़ ऑल अ माइंड गेम. अंडरस्टैंड द एग्जामिनर साइकोलॉजी, मेक हिज टास्क ईजी. हेडिंग्स बनाओ, अंडरलाइन करो, उसकी ज़िंदगी आसान बनाओ सो दैट वो खुश होकर ज़्यादा मार्क्स दे. ग्रैब हिज अटेंशन, डायग्राम्स बनाओ, कोट्स बनाओ, टेबल के फॉर्म में बनाओ, वही चीज़ जो आपने लिखी हुई हो उसी को कुछ सर्कल डायग्राम कुछ बनाओ सो दैट वो वहाँ रुके उस पेज पे, पढ़े और मार्क्स दे. मेक हिम फील दैट ही इज़ रीडिंग द पेपर ऑफ अ डिजर्विंग कैंडिडेट. शो हिम योर पोटेंशियल. फर्स्ट पेज हैज़ टू बी इन गुड हैंड राइटिंग. ड्रॉ अ फ्यू गुड डायग्राम्स. उसको समझ आएगा कि ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है, इसका पेपर एवरेज मार्क्स डाल के आगे नहीं करना है, अच्छे से पढ़ के जितने हो सके अच्छे मार्क्स मुझे देने हैं. अगर कुछ आंसर्स भी आप अच्छे लिखोगे तो हो सकता है सिंपथी की वजह से जहाँ आपने अच्छे आंसर्स नहीं भी लिखे हो वहाँ वो अच्छे मार्क्स दे दे. डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड. क्योंकि अगर उसको अच्छा भी लगता है, आपके ऊपर प्यार भी आ रहा हो, तो भी ब्लैंक पेपर पे वो आंसर वो मार्क्स नहीं डाल सकता. सो अगर आपको कुछ भी नहीं आता, हेडिंग्स डाल दीजिए, थोड़ा बहुत लिख दीजिए सो दैट अगर उसको बाकी पेपर अच्छा लगा हो तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा. देन दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ चीट कोड. आई कॉल इट द ग्रे एरिया. ग्रे एरिया मतलब वो जो आपको कंफर्म पता नहीं है बट आपको लिखना भी है उसके बारे में. इट्स द एरिया बिटवीन आई नो फॉर श्योर एंड आई डू नॉट नो, सो यूटिलाइज दैट एरिया. मतलब क्या? मतलब ये कि अगर आपके दिमाग में कोई थॉट हो तो वो आप खुद लिख सकते हो इन्वर्टेड कॉमास में, एंड यू कैन राइट एज राइटली सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, एंड आपके खुद के थॉट्स उसमें लिख दिए एज इफ सम ग्रेट फिलोसोफर हैज सेड. वो क्या है ना दोस्तों, यूपीएससी पढ़ते पढ़ते हम खुद भी फिलोसोफर बन ही जाते हैं. तो जो भी थॉट्स है आप उसमें बिंदास होकर लिख सकते हो, जस्ट प्रेजेंट इट वाइजली, ताकि ऐसा ना लगे कि कोई ब्लफ कर रहा हो. एंड इवन डेटा न्यूमेरिकल्स आप अप्रॉक्सीमेट ऐसा लिख के लिख सकते हो, न्यूमेरिकल्स जो भी आपको याद आ रहे हो. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ द कंपास बॉक्स. नाउ जिन लोगों को भी ये ज़रूरी नहीं लगता वो यहाँ पॉज करके घर जा सकते हैं, बट लेट मी टेल यू, ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आपको एक स्टेप आगे ले जाएगी. सो देयर वॉज नो वन टू टेल मी अबाउट दिस, और मुझे ये थोड़ा सा क्रूशियल लगता था तो मैंने ये स्लाइड ऐड की है. सो मैंने बहुत सारे पेन्स ट्राई किए क्योंकि बहुत फास्ट लिखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, लिटरली हाथ दर्द करने लगता है. सो आई फाउंड आउट दिस पेन. एक्चुअली माई फादर रिकमेंडेड इट टू मी, क्योंकि उनको ये पेन पता नहीं कहीं पे मिला था या किसी ने दिया था. बहुत सस्ता पेन है ये, रोरिटो ब्लू पेन, काइंड ऑफ चाइनीज़ जापनीज़, आई डोंट नो, बट आई फाउंड इट वेरी यूज़फुल बिकॉज इसमें स्मजिंग नहीं होती. द कॉन्ट्रास्ट दैट इट गिव्स ओवर वाइट पेपर इज़ ग्रेट, और सस्ता पेन है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा नहीं चलता बट इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव. देन देर आर अदर पेन्स ऑल्सो लाइक फ्लेयर राइटोमीटर है, लग्जर है, जो भी आपको सूट करे. आई एम नॉट डूइंग एनी एडवर्टाइजमेंट्स हियर. डू योर ओन एक्सपेरिमेंट्स अभी से, 3-4 महीने पहले से ही, या आपके एग्जामिनेशन आपकी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग से ही, एंड डिसाइड विच पेन सूट्स यू बेटर, बिकॉज यू हैव टू राइट इट फॉर लॉन्ग आवर्स. ओके, आपको ऐसा पेन चाहिए जो स्मूथ हो, विच लास्ट लॉन्गर, विच इज़ स्मज फ्री, ताकि आपका पेपर क्लीन लगे, कॉन्ट्रास्ट अच्छा आए और एग्जामिनर को भी पढ़ते वक्त अच्छा लगे. अगर 10 पेपर्स हैं सारे ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं तो आपका पेपर अलग लगना चाहिए. ब्रिंग एटलीस्ट 10 सच पेन्स, कीप देम रेडी. रेडी कैसे रखना है? वो पेन को बिल्कुल बंद करके नहीं रखना है, उसको थोड़ा सा लिखना है. राइट एटलीस्ट 1 or 2 पेजेस विथ ईच पेन सो दैट इट बिकम स्मूथ. एंड ऐसे जो पेन्स आपने रेडी कर रखे हो वो फाइनल एग्ज़ाम या फाइनल प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल रेडी रखने हैं. ओके, और उनसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा लिखते रहना है सो दैट यू हैव रेडी पेन्स फॉर योर मेन एग्ज़ाम. Even when you solve practice tests, you have to write with these pens. Make them smooth, keep them ready, keep your refills ready so that your
कंपास बॉक्स इज़ रेडी फॉर द मेन बैटल। कैसा है, आप बैटल पे जा रहे हो, युद्ध पे जा रहे हो और आपकी तलवार रेडी नहीं है, उसमें धार नहीं है, तो नहीं चलेगा, वो आपको पहले से रेडी करना पड़ेगा। सो दैट इज़ व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट। अच्छा, ब्लू पेन यूज़ करूँ या ब्लैक पेन यूज़ करूँ? सो इन माई पर्सनल ओपिनियन ब्लू गिव्स अ बेटर कॉन्ट्रास्ट। बहुत अच्छा लगता है ब्लू उस गंदे से वाइट पेपर पे जो हमें प्रोवाइड किया जाता है। सो राइट विद ब्लू, और अगर आपके पास टाइम हो, जैसे ऐसे में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, तो आप ब्लैक से उसको अंडरलाइन कर सकते हो, बहुत ही सुंदर लगता है। देन इन योर कंपास बॉक्स ऐड दिस मल्टी कलर्ड पेन गाइज। ये आई गेस उसका नाम फ्लेयर सनी 4 कलर्ड बॉल पेन है। आई होप यू कैन सी इट। इस टाइप का वो पेन आता है, आपने देखा होगा, बट इट इज़ वेरी यूज़फुल। ये आपको बहुत टाइम बचाएगा। जब भी आप डायग्राम निकाल रहे हो तो फटाफट इंडिया का डायग्राम बना दिया, उस रेड पेन से माउंटेन्स बना दिए, ब्लू से रिवर बना दी, ब्लैक से कुछ सिटीज़ या ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स बना दिए, ग्रीन से समथिंग एल्स, ऐसा कुछ बना दिया, तो आपका काम बहुत आसान और बहुत फास्ट हो जाएगा। एंड डू कीप अ फ्यू कलर पेंसिल्स, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, 3-4 भी रखो तो भी बहुत है, सो दैट अगर वो आपके पास कंपास रेडी है तो अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्ज़ाम्स दे रहे हो या क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर रहे हो, तब इन चीज़ों का अगर आप यूज़ करते हो तो फाइनल एग्ज़ाम में भी इट इज़ वेरी लाइकली दैट यू विल फील वेरी फैमिलियर विद दीज थिंग्स एंड यू विल यूज़ इट इन योर मेन आंसर शीट। ओके, सो प्लीज़ कीप दिस रेडी एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ये छोटी छोटी चीज़ें खुद एक्सपेरिमेंट करके आती है दोस्तों, ये कोई बताता नहीं है। मुझे ये यूज़फुल लग रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। शायद लड़कों को ये लड़कियों वाली चीज़ें, लड़कियों वाली हरकतें लग रही हों, बट इट डजेंट मैटर। जो भी चीज़ आपको मार्क्स दिलाए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। लास्ट थिंग गाइज, orientation and frame of mind. See, the atmosphere at the exam center can be very terrifying. This video was all about the things you can do in those 3 hours to score better marks. आप अपने आंसर शीट पे क्या कर सकते हो जिससे आप एक्स्ट्रा स्कोर करो, लेकिन वो जो एटमॉस्फेयर होता है, दैट कैन बी वेरी अननर्विंग, वेरी टेरिफाइंग। यू माइट फील दैट एवरीवन एल्स इज़ बेटर प्रिपेयर्ड। मुझे तो लगता था जब भी एग्ज़ाम सेंटर पे जाओ, हर कोई ऐसा लगता था कि उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, वो बहुत पढ़ रहा है, और इट बिकम्स रियली वेरी स्ट्रेसफुल। वन कैन रीच लेट एट द सेंटर, वन कैन फॉरगेट सम एसेंशियल स्टफ like your hall ticket. The center staff may misbehave, they may spoil your mood, you may not find your roll number or seat, your seat may not be comfortable. There are so many things that can happen during that, on that day, on your exam day. It may spoil your mood. Guys, whatever it is, once you're at your seat, be calm. Stop looking at anyone else. Just close your eyes. Take deep breaths. अपने इंस्पिरेशन को याद करो। जो भी तुम्हारा इंस्पिरेशन है, वो तुम्हारे माँ बाप हो, कोई ग्रेट लीडर हो, जो भी है, उसको याद करो। एनर्जी लाओ अपने अंदर एंड प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली फॉर दिस बैटल, क्योंकि ये बैटल आपको पहले आपके दिमाग में जीतना है। रिमेंबर, ऑल द एफर्ट्स यू हैव पुट इन ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स वर फॉर दिस डे। इफ देयर इज ओनली वन कैंडिडेट हु विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम योर एग्जाम सेंटर, इट्स गोइंग टू बी यू। फाइट टिल द एंड एंड गिव अ टफ फाइट। आखिर तक नहीं छोड़ना है, आखिर के मिनट तक लिखना है, जो भी दिमाग में है वो सब लिख के आना है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड लिसनिंग टू मी। आई होप you found this video useful. I have purposely made it detailed so that you guys do not feel कि आपके पास गाइडेंस की कमी है। गाइज़, मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरे पास गाइडेंस नहीं था, मुझे ये सब खुद एक्सपेरिमेंट कर कर के सीखना पड़ा है। बट आई होप कि ये सारी चीज़ें सुन के आपको थोड़ी हेल्प मिले, आपके जो डाउट्स हो वो क्लियर हो। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा सो दैट यू फाइंड इट वेरी यूज़फुल एंड यू फील कि आपके साथ ऐसा कोई है जो आपको हर स्टेप पे गाइड कर रहा है। दैट्स ऑल आई वांट गाइज। स्टे स्ट्रांग, फाइट हार्ड। जय हिंद।